یہ بڑا ظلم ہوگا اور یہاں پر وہی حالات ہوں گے جو یہ کلاؤڈ بسٹ ہوں گے. تو پھر یہ ہوگا کہ یہیں پر جیسے DHA 5 میں ہوا ہے, ایک کرنل صاحب اور اس کی بیٹی جو بہ گئے ہیں, تو یہاں پر بھی ہمارے 2 نالے ہمارے ساتھ سے گزرتے ہیں, بڑے نالے. پاکستان آلریڈی کلائمیٹ چینج سے سفر کر رہا ہے اور ہم نے بڑی مشکلوں سے یہ درخت اگائے اور وہ درخت اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے ہو گئے. اب ان کو ختم کر کے گھر بنائے جائیں گے. تو خوبصورت گراؤنڈ ہے, یہاں بچے کھیلتے ہیں, لیکن اس کے اندر اگر آپ نئے گھر بنا دیں گے, نئی لائن بنا دیں گے, جو کہ میں نے سنا ہے کوئی اس کے اندر بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو تباہی کے علاوہ اور تو اور کچھ نہیں ہے. یہ کہ ایک جگہ پر ایک لوگ ایک قسم کی انوائرمنٹ کے عادی ہو چکے ہیں. جب وہ عادی ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو ایک بہتر انوائرمنٹ سے پھر ایک کمتر انوائرمنٹ میں لے کے جانا, یہ سراسر زیادتی ہے. کیونکہ جو ایگریڈ پلان تھا اس کو انہوں نے یونیلیٹرلی ریوائز کیا ہے, جس سے کہ یہاں کے مقیم بہت پریشان ہیں. میں خود ایک ریٹائرڈ اسکول پرنسپل کا بیٹا ہوں, مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ گھر بنانا کتنا مشکل کام ہے. انسان ساری عمر حلال کی محنت کرتا ہے, اس کے بعد ایک گھر بنانے کے لیے انسان اس قابل ہوتا ہے. ابھی اور اس کی اوریجنل کاسٹ تھی 22 لاکھ, انہوں نے 10.5 لاکھ ہم سے اور لیے ایڈیشنل کاسٹ کہ ہم گرین ایریا پہ کوئی گھر نہیں بنائیں گے, پلاٹ نہیں کریٹ کریں گے, تو وہ بھی میں نے پے کیے. اس کے بعد میں نے اپنی زمین بیچ کر اس گھر کو فنش کیا اور آئی واز دا فرسٹ ریزیڈنٹ who shifted over to this colony. میں کہتا تھا کہ یار ہماری کوئی پتہ نہیں بلاوا آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو کم از کم ہمارا چھت تو اویلیبل ہو میرے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. ناظرین, کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شہر خود ڈوبتے ہیں یا شہروں کو جان بوجھ کر ڈبویا جاتا ہے؟ ناظرین, اس وقت میں PHA کی جانب سے بنائی گئی آفیسرز ریزیڈنشیا کالونی میں موجود ہوں, جہاں PHA ایک کرپشن کر کے یہاں کے رہائشیوں کو, یہاں کے مقامیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ کرنے جا رہا ہے کہ اس سوسائٹی کو ایک لے آؤٹ پلان کے مطابق اس کو متعارف کرایا گیا اور CDA سے وہ لے آؤٹ پلان جو ہے وہ اپروو ہوا, اور اسی لے آؤٹ پلان کے مطابق یہاں کے شہریوں کو وہ پلاٹ, وہ گھر فروخت کیے گئے, جس میں اوپن سپیسز بھی تھی, گرین بیلٹس بھی تھے, بچوں کے کھیلنے کے لیے پارکس بھی تھے. لیکن اب جب یہاں پہ تمام شہری اپنی زندگی بسانا شروع ہو گئے, تمام شہریوں کی زندگی معمول کے مطابق گزرنا شروع ہو گئی, PHA نے ایک دم پھر سے کرپشن کا ایک نیا دروازہ کھولا. جیسے فوج میں لوگ ہوتے ہیں تو جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو گھر مل جاتے ہیں, عسکری ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہیں ان کی, وہاں پہ ان کو گھر ملتے ہیں. تو اسی لائن کے اوپر سول سرونٹس کے لیے بھی جو ایک اپنا اسکیم بنائی جائے تاکہ ہم جب ریٹائر ہوں تو ڈورنگ سروس تو ان کے پاس سرکاری گھر ہوتے ہیں, تو جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہوتا کہ کہاں پہ اپنا سر چھپائیں. تو پھر اس طرح وہ انہوں نے اپنا یہ پرائم منسٹر نے اپروو کی کہ آن دی لائنز آف آرمی ہاؤسنگ اسکیم یہ بنائی جائے. ناظرین, یہ ایک عام سوسائٹی نہیں, اور اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ بھی عام پاکستانی نہیں, بلکہ یہ اسلام آباد کی ایک یونیک سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی میں رہنے والے تمام رہائشی پاکستان کے ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسرز ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی, اپنی جوانی پاکستان کی خدمت کی اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی. اس سوسائٹی میں زیادہ تر ریٹائرڈ لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پر رہ رہے ہیں. سارے 22 گریڈ میں جو ریٹائر ہوئے ہیں زیادہ تر وہی رہ رہے ہیں یہاں پر. یہاں رہنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایک پراپرلی ڈیزائن لے آؤٹ کے تحت یہ بنا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو گرین بیلٹ ہے وہ بہت وسیع ہے. ابھی میں نے سنا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے, ویب سائٹس پہ بھی آ گیا, سرکاری ویب سائٹس پہ PHA ہو گئی اور CDA ہو گئی, کہ اس کے لے آؤٹ پلان کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک دفعہ تو آپ نے ایک پراپر پلاننگ کے تحت اس کی منظوری دے دی, اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے, امپلیمنٹ ہو چکا ہے یہ سارا لے آؤٹ پلان. اس میں اگر تبدیلی کریں گے تو اس میں اتنی اچھی سوسائٹی میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور ابھی اچانک ہمیں پتہ چلا ہے کہ PHA نے اس کا لے آؤٹ پلان جو ہے وہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا رہائشیوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے. اس لیے کہ ایک جگہ پر ایک لوگ ایک قسم کی انوائرمنٹ کے عادی ہو چکے ہیں. جب وہ عادی ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو ایک بہتر انوائرمنٹ سے پھر ایک کمتر انوائرمنٹ میں لے کے جانا,
ये सरासर ज्यादती है। I went to along with शफीकुल्लाह खान साहब, I went to the पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वहाँ पे जाके मैंने ये रेज़ किया पॉइंट कि जनाब ये बड़ी ज़्यादती हो रही है कि यहाँ पे ग्रीन एरिया ख़त्म हो रहा है और ग्रीन एरिया के ऊपर 40 प्लाट क्रिएट कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इस सोसाइटी की सबसे बड़ी ग्रीन बेल्ट में मौजूद हैं जो स्ट्रीट नंबर 3 में वाक़ है। इस पूरी ग्रीन बेल्ट को PHA प्लॉट में तब्दील करके फ़रोख्त करना चाहती है। इस ग्रीन बेल्ट को यहाँ के शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत डेवलप किया। इस ग्रीन बेल्ट में हज़ारों पौधे लगाए गए, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे झूले नस्ब किए गए और इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे झूले भी झूल रहे हैं। इसका जो ग्रीनरी है इस कॉलोनी की, उसको सामने रख के मैंने यहाँ घर लिया था और इसकी जो ओपननेस है उसको सामने रखे मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ, बाकी सारी जगह छोड़ के। अब ये पता चला है कि जो ग्रीन एरियाज़ हमारे हैं जिसमें 6-7 साल 8 साल पुराने दरख्त भी हैं जो हमने सारे रेजिडेंट्स ने खुद सेल्फ कंट्रीब्यूशन करके लगाए हुए हैं। अब ये पता चला है कि PHA पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने जब देख लिया कि इस कॉलोनी के प्राइसेस बढ़ गई हैं, इस इकनॉमिक वैल्यू बढ़ गई है, तो उनके जहन में लालच आ गया और CDA को उन्होंने एक रिवाइज लेआउट प्लान भेजा है कि जी ये जो ग्रीन एरियाज़ हैं इसके ऊपर हम घर बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपके मुल्क के अंदर 18 से 20% जो ग्रीनरी है, जंगलात हैं, वो ऑलरेडी कम होते चले जा रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल देखिए, ये उसी के नतीजा है। फिर इर्द गिर्द के अंदर जो है जो नाले हैं उनमें अब पहले नहीं आया करते थे, अब उनके अंदर तोहियानी आना शुरू हो गई है और ये पहले ही मतलब प्रॉपरली बना हुआ है। इसके अंदर नए प्लॉट निकाल कर आप लोगों को बांटेंगे, ये बांटने वाला ही सिलसिला है ना, इसके अलावा तो और कोई नहीं है हो सकता। पाकिस्तान ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रहा है और हमने बड़ी मुश्किलों से ये दरख्त उगाए और वो दरख्त अब आप देख सकते हैं कि कितने बड़े हो गए हैं और इस कॉलोनी की खूबसूरती और जो माहौल है उसमें बेहतरी के बायस हैं। और अब इनको ख़त्म करके घर बनाए जाएंगे तो फिर ये पूरी कॉलोनी सिर्फ सीमेंट और रेत और कंक्रीट का एक ढेर बन जाएगा। सेटल लैंड नहीं था, यहाँ पे घर नहीं बन सकता था, तो हमने फिर खुद अपनी मदद आपसे इधर मट्टी भरी, इसको प्लान किया, इसको हमने लेडीज़ बैडमिंटन का बना दिया कि इसमें थोड़ा पर्दा भी कर दिया कि बच्चियां अगर खेलती हैं, बच्चियों को कोई जगह ऐसी मिलती नहीं है जहां वो अपना कर सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि अब सुनने में आ रहा है कि जब ये हमने सारा लेवल कर दिया है, PHA इसकी प्लॉटिंग करना चाह रहा है, जो नहायत अफसोसनाक है माहौलियात के लिए, यहाँ पे बच्चों के जो है नुमाइश, नक्श नुमाइश के लिए और ऑफ कोर्स वायलेशन ऑफ लॉज। रिसेंटली हमें पता चला है कि इस जगह के ऊपर जो है ये ग्रीन एरिया, पौधे और झूले ख़त्म करके यहाँ पे जो है एक जो है नए प्लॉट क्रिएट किए जा रहे हैं और वो किसी नए कोई लोग हैं उनको वो अलॉट किए जाएंगे। मैं खुद एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल का बेटा हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि घर बनाना कितना मुश्किल काम है। इंसान सारी उम्र हलाल की मेहनत करता है, उसके बाद एक घर बनाने के लिए इंसान इस काबिल होता है। ये हमारे घरों के साथ जो कॉर्नर प्लाट्स हैं उनके साथ जो जगह है और स्ट्रीट 3 के सामने जो हमने डेवलप किया है, बच्चों के लिए पार्क और झूले लगाए हैं वहाँ पर और अपने खर्चे से, अपनी डोनेशंस के साथ ये सारा कुछ किया है। तो उस पे भी जो कॉर्नर प्लाट है हमारे ख़त्म किए जा रहे हैं, हालांकि हमने उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए हुए हैं। और फिर इसके अलावा हमने उनको लिखा था 2016 में भी कि जी क्या ये हमारे कॉर्नर प्लाट कॉर्नर ही रहेंगे, तो उन्होंने हमें कंफर्म किया कि कॉर्नर ही रहेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी ये, और कॉर्नर की डेफिनेशन ये है कि वो 2 जो स्ट्रीट्स होती हैं, जैसे ये स्ट्रीट नंबर 5 है और 12 है लेन, इसका जो इंटरसेक्शन बनता है यानी जो कॉर्नर बनता है उस पे कॉर्नर, वो कॉर्नर प्लाट कहलाता है। अब ये सुना है कि जी वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे हम 5 फुट 10 फुट जगह छोड़ देंगे इनके साथ और अगला हम जगह पर हम घर बना देंगे। तो ये दिस इज तो वायलेशन ऑफ द CDA रूल्स। लेआउट प्लान के मुताबिक ये घर कॉर्नर हाउस था और इसके साथ ये ओपन स्पेस थी, लेकिन अब PHA इस ओपन स्पेस को एक प्लॉट में मुंतकिल करके इसको बेचना चाहती है और यहाँ भी एक दूसरा घर बनाना चाहती है। इस शहरी का कहना है, ये जिसका घर हमने आपको दिखाया, इन्होंने कहा कि हमने लेआउट प्लान के मुताबिक अपना घर कॉर्नर प्लॉट समझ के यहाँ पे बनाया और अब ओपन स्पेस की जगह, इस खाली स्पेस की जगह जहाँ पे ये मुतादिद दरख्त भी आपको नजर आ रहे हैं, पौधे भी आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक नया घर बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि मुकम्मल तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी है, लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी है और इन शहरियों के हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। टोटल 588 घर बनाए गए हैं। अभी 33 प्लाट्स का और इन्होंने मंसूबा बनाया है कि हम इनको चाना कटिंग करके
तो मज़ीद घर बनाएं और अपने फेवरेट्स को दें। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जो कानूनी तौर पे जो लेआउट प्लान अप्रूव हुआ है उसी को रखा जाए, रिवाइज प्लान ना किया जाए, इस माहौलियात को ख़राब ना किया जाए, इस मुल्क का के बच्चों का मुस्तकबिल का देखा जाए। और अल्लाह के वास्ते ये जो ऑलरेडी हमने जितने दरख्त उगाए हुए हैं अपने खर्चे पे, जिसमें PHA का या CDA का ज़ीरो रोल है, उसको तबाह ना किया जाए। बड़े मुश्किलों से ये दरख्त हमारे बच्चों की तरह हैं और हमने बच्चों की तरह उनको बड़ा किया और पाला है। और ये इंतहाई बहुत बड़ा जुल्म होगा इस माहौलियात के साथ और इस कॉलोनी के साथ, इस मुल्क के साथ, अगर ये तबाह करेंगे इन दरख्तों को। तो हमारी गुजारिश ये है कि ये हमारी MD साहब जो हैं PHA के, बहुत अच्छे आदमी है, समझदार आदमी है। हमारी नीचे जो लोग होते हैं ना, वो अपने नंबर बनाने के लिए बस हर MD को ना वो उल्टी सीधी बातें उनको पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और वो बिलीव कर लेते हैं यार ये सच ही कह रहे होंगे। हालांकि MD साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत समझदार हैं और बड़ा तजर्बा है उनका। मेरी गुजारिश ये होगी कि आप काइंडली देखें कि वफाकी मुसब के फैसले क्या हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का डायरेक्टिव क्या है, उसके बाद जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं, हमारी मीटिंग्स हुई हैं, उसके मिनट्स मौजूद हैं। तो हमने वी पेड मोर देन 503 मिलियन हमने पे किया है इनको कि आप ये ग्रीन एरिया को ख़त्म ना करें, वी आर रेडी टू पे, और हमने पे कर दिया इनको। अब इनको दोबारा से जो है ना, ये 2006 की है अपना स्कीम जो लॉन्च हुई थी, और 2 डिकेड्स के बाद यानी 20-21 साल के बाद दोबारा से ये एक इशू इन्होंने खड़ा कर दिया है। जो हमारी रिक्वेस्ट होगी मिनिस्टर फॉर हाउसिंग अपना मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा साहब से, और सेक्रेटरी हाउसिंग से हमारी रिक्वेस्ट होगी, वज़ीर आज़म से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि बराए मेहरबानी इसको रोका जाए। और आपका वज़ीर आज़म साहब का ये विजन भी है कि 1 अपना डॉटर 1 शजर। तो हमने उसके सिलसिले में पिछले दिनों मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज और मिनिस्टर हाउसिंग आए और यहाँ पर MD साहब मौजूद थे। हमने इनागोरेशन की है अपना नए प्लांट्स लगाने की। हमारी अपील है वज़ीर आज़म से और बाकी भी जो हाई अप्स हैं उनसे अपील है कि PHA को रोका जाए और CDA को रोका जाए कि ये इसको लेआउट प्लान को अप्रूव ना किया जाए, वरना ये बड़ा जुल्म होगा और यहाँ पर वही हालात होंगे जो ये क्लाउड बस्ट होंगे। तो फिर ये होगा कि यहीं पर जैसे DHA 5 में हुआ है, एक कर्नल साहब और उसकी बेटी जो बह गए हैं, तो यहाँ पर भी हमारे 2 नाले हमारे साथ से गुजरते हैं, बड़े नाले। PHA है पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, उसने इन तमाम लोगों की जिंदगी इस वक्त अजीरन बना दी जब उनको इस वक्त सुकून की जरूरत है।